Hello students, welcome back to Road to Defense and my name is Santosh Shekhawat and this is my fourth lecture on chapter sets. And in my previous lecture I have explained about the sets, types of sets and how we can write the sets, and some problems also we have solved on sets. So I hope that you have watched that video. If you have not watched till, then please watch it so that you can understand this in better way, right? So in today's class I will explain first thing Venn diagram and the second is operations on sets, right students? So first I will explain you what is the meaning of Venn diagram, right students? So students, I have already explained that what is the set and how we are writing the sets. So students, Venn diagram is nothing but it is a method to give the relationship between sets. Venn diagram is a graphical method by which we are giving the relation or representing the relation between two sets, right students? So Venn diagram is what? Venn diagram is a graphical method by which we are representing the relationship between sets, between two sets, three sets and so on, right students? So for this students, what we are doing, we are taking there is one universal set. What is the meaning of universal set? Suppose students, if I am taking 1, 2, 3, this is a set A, right students? All the numbers are what? Natural numbers. All these numbers are what? Natural numbers. So this set A is a subset of what? सेट ऑफ नेचुरल नंबर. तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर इस सेट के लिए क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट हो गया. मीन्स यूनिवर्सल सेट का मीनिंग ये होता है स्टूडेंट्स कि सभी सेट, यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है कि सभी सेट उसके क्या हो? सबसेट हो. जैसे कि सेट ऑफ रियल नंबर्स जो हैं, जितने भी आप नंबर्स लोगे वो कहीं ना कहीं दे आर बिलोंगिंग टू द रियल नंबर सेट. तो रियल नंबर आर जो है वो हमारे लिए क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट हो गया, राइट? तो एक हम यूनिवर्सल सेट लेते हैं और यूनिवर्सल सेट को हम हमेशा रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं. जब भी हम ग्राफिकली मेथड से, वेन डायग्राम से जब हम सेट्स में रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करते हैं तो फर्स्ट वी आर राइटिंग द यूनिवर्सल सेट और यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स? जो भी सेट्स हमें गिवन होते हैं जिनमें हमें रिलेशनशिप देना होता है, रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करना होता है, दीज सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अदर कर्व्स, स्पेशली बाय सर्कल्स. हम जनरली सर्कल्स ही लेते हैं इसके लिए. जैसे सपोज मुझे ये सेट रिप्रेजेंट करना है स्टूडेंट्स, तो मैं क्या करूंगी? दिस सेट A elements are what? 1, 2, 3. Suppose there is one more set B and it is what? 1, 2, right? So this set 1 and 2, B and A both are having two elements common, right student? तो जब आप इस सेट B को जब लिखोगे तो आप कैसे लिख सकते हो स्टूडेंट्स? इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये सेट B हो गया, ठीक है स्टूडेंट? सो दिस इज द मेथड Venn diagram of these two sets. अब ये common और ये these all things I will explain in operation on sets, but I think कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि Venn diagram क्या होता है. तो Venn diagram is representing the relationship between two sets by graphical method or by drawing, you can say. Clear students? Now students, second topic is what? Operation on sets. Now what type of operations are there on sets? First operation is what? Union of sets. Second operation is intersection of sets. And the third operation is difference on sets. I will explain these all things in details. So listen students, what is the meaning of union of sets? एक example देके explain करूँगी students में. Suppose there is a set A and the elements are 1, 2, 3 and 4. There is other sets, elements are what? 1, 2, 6, 7 and 8. Right students? So if I want to find out the union of these two sets. Students, union का meaning क्या होता है? The word is representing the meaning only. Union means what? जोड़ना, right? So it means what students? That मैं यूनियन अगर फाइंड करना चाहती हूँ तो इसका मतलब क्या है कि सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स को मैं कंबाइन करना चाहती हूँ, मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको, राइट? तो ए सब फर्स्ट थिंग दैट यूनियन इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय, दिस इज द सिंबल फॉर यूनियन. क्लियर स्टूडेंट? ए यूनियन बी. It means what? I want to write all the elements of set A and set B in a single set, right? So I will write 1, 2, 3, 4. Now elements of set B are what? 1, 2 I have already written. 6, 7, 8 are left out. So 6, 7 and 8. This is the union of this set. Clear students? So union means what students? That the element is belonging A union B equal what? X, and X belonging to set A or X belonging to set B.
या तो x जो है वो सेट A में बिलोंग करेगा या फिर सेट B में बिलोंग करेगा. दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ यूनियन ऑफ ए सेट. ऐसा जरूरी नहीं है, दिस इज नॉट कंपल्सरी दैट एलिमेंट A बिलोंग्स टू बोथ सेट. क्लियर स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, A और B में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एक साथ लिखना है. क्लियर स्टूडेंट्स, सो दिस इज व्हाट A यूनियन B. अब स्टूडेंट्स मैं आपको बताती हूँ A इंटरसेक्शन B. मैं आपको यहीं पे बताती हूँ सो दैट कि आप कंपेयर कर पाए दोनों चीज़ों को, राइट. दिस इज द सिंबल फॉर इंटरसेक्शन. अब इसी का मुझे इंटरसेक्शन अगर लिखना है तो हाउ आई विल राइट द इंटरसेक्शन ऑफ दिस सेट. तो स्टूडेंट्स इंटरसेक्शन का मीनिंग होता है द एलिमेंट्स विच आर कॉमन इन बोथ द सेट्स, राइट. तो 1 and 2 आर कॉमन, इट मीन्स व्हाट 1 and 2 आर द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सेट्स. तो अगर मुझे इसका सेट बिल्डर फॉर्म लिखना हो तो स्टूडेंट्स मैं क्या लिखूंगी, A इंटरसेक्शन B इक्वल, मैं यहाँ पे लिख के बताती हूँ स्टूडेंट्स, A इंटरसेक्शन B इक्वल व्हाट, x बिलोंगिंग टू सेट A एंड x बिलोंगिंग टू सेट B. दोनों में बिलोंग करना चाहिए, राइट स्टूडेंट्स. A intersection B only contain the elements which are belonging to set A as well as set B, और A union B belonging to the elements which are belonging to set A और set B. राइट स्टूडेंट्स, या तो सेट A में बिलोंग कर रहा है या फिर सेट B में बिलोंग कर रहा है या फिर दोनों में बिलोंग कर रहा है, राइट. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन A यूनियन B एंड A इंटरसेक्शन B. तो स्टूडेंट्स आई एम एक्सप्लेनिंग इट अगेन. आई हैव एक्सप्लेन टू थिंग्स, यूनियन and intersection. Union means what? All the elements of set A and set B. Combined elements of set A and set B are known as what? Union. And in the set builder form, we can write it as x belonging to set A or x belonging to set B, or it can belong to both the sets, right? A intersection means what? Set x belonging to set A and set B. दोनों में belong करना चाहिए. Common elements we are writing. So this is the symbol for union. You can learn it as U for union. And this is the symbol for intersection. Clear students? Now I will explain you difference of sets. Okay students, so third is what? Difference of sets. So A minus B, it means what? Difference of two sets. अब students A minus B और B minus A दोनों में difference होता है. They both are not इक्वल, राइट. तो पहले मैं आपको A माइनस बी एक्सप्लेन करती हूँ स्टूडेंट्स. तो A माइनस बी का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स, आपको वो सभी एलिमेंट्स लिखने हैं जो सेट A में तो लाई करते हैं बट सेट B में बिलोंग नहीं करते, राइट. ऑल द एलिमेंट्स, देखो अगर मैं आपको इसका सेट बिल्डर फॉर्म लिख के दिखाऊं तो x बिलोंगिंग टू सेट A बट x नॉट बिलोंगिंग टू सेट B में बिलोंग नहीं करना चाहिए, राइट. तो जब आप A माइनस बी लिखोगे स्टूडेंट्स तो आपके पास में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 A में बिलोंग करता है बट B में बिलोंग नहीं कर रहा है, राइट. तो 1 आप ले सकते हो. 2 इसमें बिलोंग कर रहा है, इसमें बिलोंग कर रहा है तो आप नहीं, वो नहीं लोगे. 3 आप ले सकते हो, 4 नहीं ले सकते. 5 सेट A में बिलोंग कर रहा है बट B में बिलोंग नहीं कर रहा, 5 आप ले सकते हो. 6 नहीं ले सकते. 8 B में बिलोंग कर रहा है, A में बिलोंग नहीं कर रहा, राइट. तो आपको सिर्फ वही एलिमेंट, अगर आप A माइनस बी लिख रहे हो स्टूडेंट्स तो व्हाट यू हैव टू कंसीडर, द एलिमेंट शुड बी बिलोंग टू सेट A बट इट शुड नॉट बिलोंग टू सेट B. ओनली द एलिमेंट्स विच आर बिलोंगिंग टू सेट A बट नॉट बिलोंगिंग टू सेट B, राइट स्टूडेंट्स. अब अगर मुझे इसका B माइनस A निकालना होता है स्टूडेंट्स तो मैं कैसे निकालती, 2 इसमें बिलोंग कर रहा है, 4 इसमें बिलोंग कर रहा है, 6 इसमें बिलोंग कर रहा है, 8 B में बिलोंग कर रहा है बट A में बिलोंग नहीं कर रहा. तो ओनली A जो है वो B माइनस A में आएगा, राइट स्टूडेंट. तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख रहे हो कि A माइनस बी इज नॉट इक्वल टू B माइनस A. ये इक्वल नहीं है, राइट. ये इक्वल हो भी सकता है, इट मे बी इक्वल और मे नॉट बी इक्वल. ऐसा जरूरी नहीं कि वो इक्वल हो हमेशा, राइट. तो स्टूडेंट्स अगर ये दोनों इक्वल होते हैं इसका मतलब क्या है कि अगर ये दोनों इक्वल है इसका मतलब सेट A और सेट B दोनों क्या है, इक्वल सेट है. तो वो हम बाद में इसके बारे में डिस्कस करेंगे. अभी आप इतना समझिए कि A माइनस बी और B माइनस A का मीनिंग क्या होता है, राइट स्टूडेंट्स. तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ऑपरेशन ऑन सेट्स जो हैं वो 3 हैं, यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स एंड डिफरेंस ऑफ सेट्स. स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि यूनियन ऑफ सेट्स पे है. स्टूडेंट्स A यूनियन B हमेशा B यूनियन A के इक्वल होता है. A यूनियन B और B यूनियन A दोनों इक्वल होते हैं, राइट. स्टूडेंट्स ये जो प्रॉपर्टीज हैं, दीज प्रॉपर्टीज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड फॉर नंबर्स, राइट. जैसे आपने क्लाउजर प्रॉपर्टी पढ़ी है, आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है, आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है, आइडेंटिटी, इनवर्स, ये सभी पढ़े हैं. तो वही हम प्रॉपर्टीज जो हैं वो ऑपरेशन ऑफ सेट्स के लिए पढ़ते हैं. जो A यूनियन B इक्वल होता है B यूनियन A, ये क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है. A यूनियन B यूनियन C इक्वल होता है A यूनियन B यूनियन
यूनियन सी के, तो ये क्या है स्टूडेंट्स आपके पास में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है जो आपने, या आप बोल सकते हो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते, इसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, राइट। ए यूनियन फाई जो है वो इक्वल होता है ए के, क्योंकि फाई क्या होता है, इम्पिटी सेट होता है, उसको उसमें अगर आप इंक्लूड भी करते हो तो वही सेट वापस आएगा, राइट स्टूडेंट्स। उसके बाद में है ए यूनियन ए है वो ए के ही इक्वल होगा। यू यूनियन ए, यू क्या है स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल सेट है, तो यूनिवर्सल सेट पहले ही जो सेट ए है वो सबसेट होता है यूनिवर्सल सेट का, तो अगर आप उसके एलिमेंट्स को उसमें इंक्लूड भी कर दो तो भी क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट ही आएगा। तो दीज आर सम प्रॉपर्टीज विच आर यूजफुल फॉर यूनियन ऑफ सेट्स। Okay students, so there are some properties for intersection also, सेम ही properties है students, A intersection B, B intersection A के इक्वल होता है, क्योंकि आप कैसे भी उनमें आपको सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं, तो कॉमन एलिमेंट्स जो है वो कैसे भी हो सकते हैं, तो आप कॉमन एलिमेंट किसी भी तरीके से इसके लिख सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन सी, ये क्या है स्टूडेंट्स आपके पास में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की। इसका मीनिंग स्टूडेंट्स ये है कि जो अगर आप पहले ए और बी में कॉमन निकालें और फिर सी में कॉमन निकालें, या फिर आप पहले बी और सी में कॉमन निकालें और फिर ए में कॉमन निकालें, तो दोनों का जो रिजल्ट है वो सेम ही आता है, राइट। और फाई इंटरसेक्शन ए ऑब्वियसली फाई के इक्वल होगा, यू इंटरसेक्शन ए जो है वो इक्वल ए के होगा, क्योंकि यू जो है वो यूनिवर्सल सेट है, ए उसका सबसेट है, तो दोनों में कॉमन क्या होगा, ऑब्वियसली ए ही होगा, राइट। तो ए आएगा, ए इंटरसेक्शन ए जो है वो इक्वल होता है ए के, राइट स्टूडेंट्स। ये कुछ प्रॉपर्टीज है। एक लास्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, वो मैं आपको लिख के बता देती हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है स्टूडेंट्स आपको पता है नंबर्स के लिए हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, तो वही प्रॉपर्टीज हम सेट्स के लिए भी पढ़ते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को आप क्या लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये आप लिख सकते हो। जैसे हम नंबर्स के लिए लिखते हैं ए प्लस बी माइनस सी होता है, आप इसको कंपेयर करके भी देख सकते हो स्टूडेंट्स, ऐसे हम लिखते थे, तो ये ए मल्टीप्लाई, तो ए मल्टीप्लाई बी माइनस ए मल्टीप्लाई सी, इस तरीके से हम लिखते थे। तो सेम वही है स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, सेम ऐसे ही लिख सकते हो, राइट। तो ए इंटरसेक्शन बी, फिर ये वाला साइन यूनियन आएगा यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी। तो ये जो स्टूडेंट्स ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो हम यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज मैंने आपको सिर्फ प्रॉपर्टीज़ जो है वो एक्सप्लेन की है। इन माय नेक्स्ट क्लास वी विल सॉल्व सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दीज, तो आपको ये पूरा तरीके से समझ में आएगा। मे बी आपको अभी पूरा समझ में ना आए, बट आप प्लीज़ इसको वॉच कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको समझ में आए। अगर आपको इसमें कुछ डाउट रहता है तो मैं अपनी नेक्स्ट जो क्लास है जो उसमें मैं आपको इस पर प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करके दिखाऊंगी, और अभी जो मैंने वेन डायग्राम जो एक्सप्लेन किया है उस पर भी बेस्ड हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो आपका ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट, कीप वॉचिंग मी एंड थैंक यू वेरी मच for watching me. So till then, bye bye.